Guys are warmed up and you're a great audience, very good energy. You have to keep your energy up. Okay, I'm going to invite the first panel on stage. Okay, I'll be moderating the panel. We have 6 people on the panel. Okay, I'll invite them one by one. You guys will be a nice audience. You will have energy. सुनोगे पूरा बात. Okay, the panel is about molecules for biological performance. Okay, मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, मुझे नहीं समझ आया है. ओके मॉलिक्यूल मुझे समझ आया, बायोलॉजिकल परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है. विल अंडरस्टैंड टुगेदर. फर्स्ट पैनलिस्ट आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज is a self-made fitness journey he has 1,60,000 plus followers. He's proved that consistency changes lives. Please welcome the transformation coach Manish Keswani. Manish आ जाओ, सब लोग तालियां बजाओ guys. The second panelist is India's first Sikh Olympian in bodybuilding and an elite prep coach. Yeah. He redefines discipline and precision. Please welcome the powerhouse Sunmeet Gill. Next we have founder and CEO of Wellversed. Yeah. Okay, your intro is still going on. He's deeply passionate about health and wellness with a particular emphasis on health span maximization. The idea of extending the period of life spent in good health. He's an alumnus of Stanford Biodesign and has strong background in healthcare innovation. Beyond his entrepreneurial ventures, Anand is also an author with hundreds of published articles covering topics like science, entrepreneurship, culture building, music, arts, poetry. Wow! Music, arts, poetry also. Leave something for us. You keep biodesign, brother. Arts and poetry we should write. His career reflects a blend of scientific rigor, business acumen, holistic approach to wellness. He's already here. One more round of applause for him. Then we have a natural pro bodybuilder and a contest coach. He combines grit with grace on and off stage. Please welcome the sculptor of champions, Dikshant Kathayat. What a body, brother. Nice. कितना साल लगेगा मेरे को ऐसा बॉडी के लिए? 10 साल. मैं तो बूढ़ा हो गया भाई, मेरा नहीं हो रहा. Next we have an award-winning nutritionist and yoga expert. She blends science and tradition to unlock holistic health. Please welcome the healer scientist Nidhi Kaku. सब लोग आराम से सीट्स ले लीजिए, बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए. आई हैव वेरी सिंपल क्वेश्चंस आई थिंक. ऑसम, यहाँ पे बैठ जाओ मैं. ओके ग्रेट. ए हम लोग अपना ऑर्डर में ही बैठे हुए हैं. यू आर नॉट, यू आर सीईओ, यू डू व्हाटएवर यू आर अलाउड. ओके आई विल स्टार्ट विथ दीक्षांत. ओके ऑसम. वेरी बेसिक क्वेश्चन. ओके because I could not understand, then I wrote this question. First I asked ChatGPT. उसने ऐसा लिख के दिया, मुझे कुछ नहीं समझ आया. हमको विटामिन पता है, प्रोटीन पता है, ये मॉलिक्यूल्स पता है. बिल्कुल. What are these other molecules that help us with biological performance? So बहुत से मॉलिक्यूल हैं. पहला रीजन तो हम इधर पे क्यों हैं? क्रेटीन की वजह से, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट की वजह से आज हम लोग इधर पे हैं. मेन one of the reason. That's why we're doing this event. So we use creatine. Everyone using creatine. Everyone knows that. He said like, for recovery, post-workout, take creatine. It will help you to generate your ATP during your workout. So that's why we take creatine. And creatine help you to, when you are under stress, it will help you to reduce your stress and work very well on your brain when you take creatine. That's the one of reason. And the creatine. And second, you can go with ashwagandha, KSM 67. That's going to help you more with your recovery, reduce your stress from your body. These are the major compound. I think this is going to help you. Where we need to consider, when we come to molecules and all in fitness. Awesome. So creatine हो गया, ashwagandha हो गया. Any of you want to add any more of your favorite molecules? Just want to understand the spectrum. I'll just add a little on to that. So I feel because most of the audience is not introduced to the concept of what these molecules are, right? So this is a complex topic and they need to form a visual picture in their mind, right? So how they need to think about it is that we have 3 broad classification of molecules. So there are nutrition molecules that we get through food. Then we have supplement molecules, which are, let's say, concentrated from food sources only. And then we have drugs, which are totally different types of molecules, which are not found in nature, right? So these are the 3 broad categories, and you have to picture it as a spectrum, right? From nutrition to drugs. And everything lies on that spectrum. So like he mentioned, creatine है, उसमें 4-5 categories then बनेंगी, ठीक है? So you have macros, broad, proteins, carbohydrates, etc. Then you have micros, vitamins, minerals. Then you have, let's say, nootropics,
ठीक है. Then you have botanicals जो इन्होंने mention किया, अश्वगंधा और ये सब हो गया. Then you have let's say a couple of more categories are there, ठीक है. One of the key important one for athletes is hormonal molecules, so testosterone, BPC, ये सारी चीज़ें. तो what I'm trying to say is कि rather than understanding हर molecule हर किसी को पता नहीं होगा, but we need to understand the broad picture कि nutrition से लेके drugs तक, food से लेके pharmaceutical तक, ये spectrum है, इसके बीच में हम लोग बात कर रहे हैं आज. Okay, amazing, great. I'll actually come to Nidhi. Can you give us some examples of nutrition molecules, supplement molecules, drugs molecules, etc., etc.? Where are the lines drawn? So basically these are adaptogens. Basically how do they adapt to our body? How do they enhance our performance? So when I talk of enhancing the performance, once I'm working at not only speeding up the muscle recovery but overall body recovery. As soon as we exercise, what happens is we are generating a lot of free radicals in our body. What we require is more of antioxidants to nullify the free radicals, or they may be toxic and cause more cancer. So otherwise, all of the athletes would fall into that, very high risk for cancers. कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज करें वो कैंसर हो जाएगा. So that is इसीलिए दोस्तों, that is why these are simple, सॉरी कितना एक्सरसाइज करने से हो जाएगा? Sorry. कितना एक्सरसाइज करने से कैंसर हो जाएगा? So there's no, everyone has a different threshold. हाँ भाई, मैं तो स्टार्ट ही नहीं कर रहा भाई. ठीक है. Okay, also there is one more very good research which has been published. So those people who are exercising, their muscles release a protein called as SPARC, which is actually anti-carcinogenic. So आप exercise नहीं करोगे तो भी हो जाएगा. So yes, so and hence we require few ingredients that help us to overall maintain our health and enhance our performance, right from our brain health, cognition level. So there are, as sir mentioned, there is ashwagandha. There's also turmeric, ginseng. There are also variables actually today. You can detect your heart rate variability. So once your heart rate variability is detected while you're sleeping or while you are across your day, and then it shows up how much is your body prepared for a particular kind of a workout. Also there is today the field of nutrition and food has been advanced to a level wherein even the genetic makeup has been closely studied with your nutrition. So a particular nutrition changes your genetic makeup, and your genetic makeup changes your response to a particular kind of a food. So that is called as nutrigenomics. So each one of us is built up with different DNAs and genes. So and each of us have a different response to the same level of creatinine if someone takes and versus some other individual takes. ये वही वाला चीज़ है क्या? Like हम लोग ज़्यादा राइस खाते तो हमको कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम जनरेशन से हम लोग खा रहे हैं. बट जो कल्चर में नहीं खाते वहाँ पे खाते हैं तो उनको फिर प्रॉब्लम होने लगता है. इज द सेम थिंग ऐसे? ओके. मैंने क्या ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया क्या? ओके, ठीक है. अमेजिंग, थैंक यू. सो सुमित, माय क्वेश्चन इज, एथलीट कम्युनिटी में कैसा है एक्सेप्टेंस मॉलिक्यूल्स का, और क्या मॉलिक्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं? सो मैं बेसिक रखूँगा ताकि सबको समझ आए, बिकॉज आई एम द मोस्ट सीनियर ओनली एनहांस्ड एथलीट हेयर एंड ये सेकंड है. तो एनहांसमेंट जो होती है, जैसे आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, जो एथलीट्स हाई लेवल पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली टेस्टिंग नहीं होती है, जहाँ पे वाटर टेस्टिंग नहीं होती है, तो उसके अलावा भी एथलीट्स बहुत कुछ यूज़ करते हैं. सबसे बड़ा एग्जांपल है जो आपकी इंजरी प्रिवेंशन के लिए होता है, BPC TB 500. सो हम बात कर रहे थे, इनकी अभी इंजरी हुई है यहाँ पे, तो टॉकिंग की BPC कहाँ से मिलेगा इनको जेन्युइन. सो दैट्स बिकॉज आपकी रिकवरी रेट इंप्रूव करता है. आप में कोई इंजरी है, एथलीट्स के साथ इंजरी, एथलीट की लाइफ है, इंप्रूव कर रहे हैं, तो इंजरीज़ भी पार्ट है उनकी गेम का. तो इंजरीज़ होती हैं तो काफ़ी डिले हो जाता है उनकी रिकवरी होने में, तो जिससे क्या है, कॉम्पिटिटिव स्टेज है, तो आपके दूसरे एथलीट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आगे चले जाते हैं ज़्यादा प्रैक्टिस करके. तो वो मैचअप करने के लिए आपको इन्हांसमेंट्स यूज़ करनी पड़ती हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स यूज़ करने पड़ते हैं जो आपकी रिकवरी कैपेसिटी या आपकी इंजरी प्रिवेंशन को स्पीड अप करते हैं, इंजरी रिकवरी को स्पीड अप करते हैं. तो उन केसेस में ये
मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं जो ड्रग उसमें आते हैं जो। Okay. और इसके अलावा बेसिक्स सप्लीमेंट भी होते हैं, जैसे इन्होंने बात की थी अश्वगंधा की। जैसे आप डायनामेट के प्री वर्कआउट में देखेंगे कैफ़ीन है जो सबसे बेसिक और सबसे इफ़ेक्टिव माना जाता है। कैफ़ीन एनहाइड्रस। Okay. जो आपकी फिजिकल और मेंटल बूस्ट करने के लिए, और उसके साथ अल्फ़ा जीपीसी जो Okay. कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ज़रूरी नहीं है जो ट्रेनिंग कर रहा हो उसी को लेना चाहिए, बट इफ़ आप मे बी आप जॉब करते हो लैपटॉप पे, आपका दिमाग एक जगह नहीं रहता है, ठीक है, आप ब्लरी रहते हो, चीज़ें भूलते हो, तो वो आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग इंप्रूव करता है। अल्फ़ा जीपीसी सभी के लिए है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एथलीट्स के लिए है। और इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं जो एथलीट्स यूज़ करते हैं, वो ड्रग्स में आती हैं, वो समझ नहीं आएगी सबको तो बात करने की पॉइंट भी नहीं बनता, बिकॉज सारे नेट ही बैठे हैं यहाँ पे। Okay, very nice, very simple answer. Love it. Amazing. Manish, my question is, जब ये मॉलिक्यूल मैंने सुना तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया, स्टेरॉइड्स करके. So where do steroids fit into the spectrum? स्टार्ट हुआ था डायनाबॉल से, ओरल स्टेरॉइड से। Okay. डायनाबॉल से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके लोग यूज़ करते गए और परफॉर्मेंस इनहांस होती गई, प्रैक्टिस होते गए। अभी रिफाइंड हो गया है बहुत ज़्यादा। Okay. मीन्स साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, कैसे साइड इफ़ेक्ट्स को टैकल करना है, तो बहुत आगे बढ़ चुकी है इंडस्ट्री स्टेरॉइड के मामले में। तो पर जो नेचुरल लिफ्टर्स है, जैसे हम सब अभी बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए वाडा, उसाडा, ISO जैसे IOC जैसे वो है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया कि टेस्ट हो, फेयर जजमेंट हो। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि Okay. उनको एक जजमेंट मिल रहा है कि नहीं, सही, आप डिज़र्व करते हो जो चीज़ आपने नेचुरली, क्योंकि अभी आप नेचुरली करते हो ना। अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे 10 साल आज कंप्लीट हो गए, ऑन एंड ऑफ था पहले स्टार्टिंग में 4-5 साल। नॉलेज जब गेन किया तो अभी 6-7 साल कंप्लीट होने वाले हैं अच्छे से करते हुए। अगर नेचुरल लिफ्टर कर रहा है तो ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग करके आया है, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग की वजह से उसको पता है किस तरह की मेहनत मैंने की है। अगर वो चीज़ कोई और आके लेके जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो वो जो वाड़ा उसाड़ा कर रहा है उसके लिए बहुत अप्रिशिएट है उनको कि नहीं, बहुत आगे तक जाएगा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, तो ये बेस्ट चीज़ है। Okay, got it. Very nice. आपने एक बहुत अच्छी बात कही सुमित, आपने कहा कि मेंटल, अगर आपको कॉग्निटिव एबिलिटी भी चाहिए तो उसके लिए आनंद के लिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटल स्टैमिना के लिए क्या मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसे अफेक्ट करते हैं? So I think again, I think of everything from a systemic level, ठीक है। तो if we think about जो मैक्रोज हम आज लोग कंज्यूम करते हैं वो पहले प्रेवलेंट नहीं थे, ठीक है। सो एनीथिंग दैट इज़ बीइंग इनोवेटेड ऑल्सो इज़ डिटर्मिन्ड बाय उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। सो फॉर एग्जांपल, आज से अगर हम 15 साल पहले जाएं और पूछें यार प्रोटीन पाउडर कौन खाता है, तो लोग बोलते थे यार डब्बे खाने वाले डब्बे जैसे बन जाते हैं, ऐसा बोला जाता था, बिकॉज दे हैड नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट प्रोटीन इज़, व्हाट अमीनोज आर, वॉट एवर, ठीक है। तो अभी जो नए क्लास ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं विच आर इम्पैक्टिंग एवरी आस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी, they will have to find a certain adoption and adherence with athletes. तो हमने क्या देखा कि यार इंडिया एज एन इकॉनमी हम लोग लेट्स से 5th 4th पे जिस भी नंबर पे आ गए हैं, बट उस प्रोपोर्शन में हम लोग गोल्ड मेडल्स कभी नहीं जीत पाते, बिकॉज as athletes, as sports people, we don't work on all aspects of biology to that extent जिस पे बाकी लोग कर रहे हैं। तो अगर हम मेंटल फिटनेस की बात करें या मेंटल स्टैमिना की बात करें, मेंटल एंड्योरेंस की बात करें, तो अभी उसके बारे में सोच ही नहीं रहा है कोई कि हम उसको सप्लीमेंट करें ड्रग्स के साथ। लोग तो ये समझ रहे हैं कि यार ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं है यार। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ही वर्ड मेंटल आता है लोगों को लगता है अच्छा यार ये तो whatever, मतलब कि उसके अराउंड एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। तो हाउ विल दे कंज्यूम सप्लीमेंट्स जो मेंटल एंड्योरेंस और एंड आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, लाइक ये जो ऑडियंस है ये बहुत इवॉल्व ऑडियंस है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग मॉलिक्यूल्स एंड सप्लीमेंट्स, राइट। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल पॉपुलेशन, एंड सिस्टेमिकली एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय व्हाट द लार्जर पॉपुलेशन इज डूइंग। सो
इवन दो मैं जितना मर्जी पढ़ लूँ, अगर मेरी मम्मी मुझे आके बोलती हैं यार ये तो बेकार चीज़ है, तो मेरे माइंड में इम्पैक्ट होगा उसका। मेरी मम्मी बोलती है, आप मानोगे नहीं, मेरे मम्मी को प्रोटीन पाउडर खिलाने का कोशिश किया, जितना गाली सुनाऊँ मैं। मम्मी बोलती है दाल खा लो हो जाएगा, अरे मम्मी नहीं हो रहा है ना। ऑसम, अमेजिंग। ऑल्सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू हु आर द की प्लेयर्स इन दिस कैटेगरी। आई थिंक ये क्वेश्चन बाकियों को पूछना चाहिए, मैं तो वेल वेस्ट ही बोलूँगा। ओके, डन, विल गो विथ हु आर द की प्लेयर्स इन द मॉलिक्यूल्स कैटेगरी। क्वेश्चन इस कैटेगरी में, मॉलिक्यूल सप्लीमेंट्स वगैरह कैटेगरी में, हु आर द की प्लेयर्स? फॉर ब्रेन फंक्शनिंग, फॉर कॉग्निटिव फंक्शनिंग, नहीं पूरा ओवरऑल कोई भी सप्लीमेंट। सबसे पहला जिसके लिए इकट्ठा है क्रेटीन, सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड और सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाने वाला सप्लीमेंट। तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये आपकी सिर्फ मसल स्ट्रेंथ और मसल की वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, एटीपी इंक्रीज़ करता है, बट जैसे जैसे रिसर्चेज हो रही हैं आप पता लगता है कि ब्रेन फंक्शनिंग के लिए कितना बेनिफिशियल है क्रेटीन। एक बच्चे से लेके एक 70 साल के बूढ़े तक को भी क्रेटीन देना चाहिए, बिकॉज ये आपके मसल की पावर से लेके आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है। सो ये जो हम बातें करते हैं कि क्रेटीन सिर्फ एथलीट्स के लिए है, ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। तो जैसे जैसे रिसर्चेज आ रही हैं तो पता लग रहा है कि आपकी जो ब्रेन के एनर्जी लेवल्स होते हैं वो भी क्रेटीन इम्प्रूव करता है। इवन कुछ मेडिकल इश्यूज़ में भी, जैसे अल्जाइमर में भी, बिकॉज ऑब्वियसली वो ब्रेन से कनेक्टेड है, तो उसमें भी क्रेटीन की कंजप्शन दिखाई गई है, जिससे जो पेशेंट्स हैं उनको बेनिफिट्स हुए हैं रिकवर करने में। गॉट इट। सो जस्ट टू ऐड ऑन टू दिस, ये तो मजाक की बात हो गई चलो, बट जब मैं उस स्पेक्ट्रम की बात करता फ्रॉम न्यूट्रिशन टू फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस स्पेक्ट्रम में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इनोवेशन का जो पेस है वो स्लोअर डाउन होता जाता है, बिकॉज नाउ यू हैव टू टेस्ट मॉलिक्यूल्स इन रियल लाइफ, यू हैव टू सी कि यार वो सेफ्टी है कि नहीं, डू दे मीट ऑल द रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज और नॉट, राइट। सो जैसे जैसे हम लोग मोर एफिकेसी वाले मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करते हैं, वी हैव टू लाइक हैव अ, आई वुड से, अ लैग पीरियड ऑफ सॉर्ट्स, कि यार आज जो मॉलिक्यूल्स रिसर्च लैब्स में जिन पे काम हो रही है, ठीक है, नॉट जस्ट रिसर्च लैब्स इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बट ऑल्सो हाउ दे विल बी प्रोड्यूस्ड, उनकी क्या मशीनरी होगी, उनकी शेल्फ लाइफ कैसे मेंटेन रहेगी, एट्सेट्रा, राइट। सो जैसे जैसे हम लोग लेट्स से क्रेटीन, आई वुड से कि फार्मास्यूटिकल की तरफ नहीं है, ठीक है, इट लाइज विद इन न्यूट्रास्यूटिकल्स, बट जैसे जैसे आप फार्मास्यूटिकल तरफ जाते हो तो आज जो रिसर्च लैब्स में हो रहा है वो 20 साल बाद आएगा, ठीक है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द की प्लेयर्स, द आयरनी इज के की प्लेयर्स अभी लोगों को पता नहीं है, बिकॉज दे विल बी पीपल जो ऐसे मॉलिक्यूल्स पे काम करें जो 20 साल बाद पॉपुलर होंगे। तो हम बोल सकते हैं यार द लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया राइट नाउ इज़ हेल्थ कार्ड, राइट, उसके बाद लेट्स से हम लोग हैं, ठीक है, बट दिस वुड बी लेट्स से नॉट पोर्ट्रेइंग द इंफॉर्मेशन इन द राइट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जो इसको लीड कर रहा है इस एवोल्यूशन को, दोज आर द रिसर्च लैब्स, दोज आर द मैन्युफैक्चरर्स, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है अभी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वो बना रहे हैं वो 20 साल बाद बाहर आएगी। Okay, got it. One last question, anybody can answer. इंडिया में और यूएस और यूरोप वगैरह में क्या डिफरेंस है सप्लीमेंट्स को लेके? सब लोग भी दे सकते हो आंसर अपना अपना पर्सपेक्टिव से। सेफ्टी जितना प्रायोरिटी करेंगे ना हम इंडिया में, मीन्स कैसा होता है कि वेलगोर के भी मैंने क्रेटीन देखे हैं मार्केट में जो सेम लेबलिंग करके एक अमेज़ॉन से परचेस किया गया था, एक फ्लिपकार्ट से परचेस किया गया था और एक लोकल वेंडर से कब परचेस किया गया। तो सेफ्टी जितना इम्प्रूव होगी ना इस फील्ड में, उतना ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे फिटनेस में और इन सप्लीमेंट को प्रायोरिटाइज करेंगे और यूज़ करेंगे। जितना ज़्यादा सेफ्टी जैसे यूएस में है कि किसी ब्रांड का लाइसेंस, किसी ब्रांड को अगर पकड़ लिया जाता है और उसका अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया तो लाइफ में कभी बिजनेस ही नहीं कर पाएगा वहाँ पे। पर इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में कहीं ना कहीं सेफ्टी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि कैसे कोई, अगर वेलकोर ने इतनी मार्केटिंग की है, वेलकोर ने अपना नाम बनाया है, पहचान बनाई है, और वो अगर सप्लीमेंट 1000 रुपये में सेल कर रहा है, 1000 रुपीज़ में सेल कर रहा है क्रेटीन का डब्बा, तो लोकल वेंडर आता है, उसको लेबल करता है। इंडिया में ऐसे कहाँ प्लांट्स बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ईजिली बन जा रहे हैं। कॉपी करना इज़ वेरी सिंपल। आपने लिया प्रोडक्ट, कॉपी करा, उसमें आपने क्या हार्मफुल डाल दिया, पर वो खा बेचारा रहा है वेलकोर के नाम से, उसको पता ही नहीं है कि वो नकली है। तो उसके वजह से इंडिया में ये इम्प्रूवमेंट आना चाहिए कि क्यों ये कोई अच्छा ब्रांड बन रहा है
तो क्यों उसका डुप्लीकेट बन के सेल हो रहा है? इसीलिए sell हो रहा रेगुलेशन की ज़रूरत है. है. Yes. ओके, ऑसम. सर आप कुछ बोल रहे थे. ऑल्सो R&D, बिकॉज हमारे इंडिया में इतनी R&D स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं हम किसी भी सप्लीमेंट को वैसी कोई सीरियसली नहीं लेता है. ऊपर से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो भी इतना सीरियसली नहीं लेते हैं R&D को. तो इसलिए जैसे वेलको ने अभी इनिशिएट किया है, वो हर एक, हम कंज्यूमर्स हैं, उनके एथलीट्स हैं, तो सबसे पहले हमारी फीडबैक लेंगे इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं. बिकॉज मैं काफ़ी लंबे टाइम से हूँ, तो इन्होंने इवन प्री वर्कआउट्स में भी सो R&D टीम बात करती है, सबके व्यूज़ लेती है. तो यहीं लैक करता है इंडिया की R&D पे हम इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं. बिकॉज काफ़ी हैफ्टी अमाउंट चाहिए होती है R&D टीम को इतनी फीडबैक्स लेने के लिए, रिसर्चेस करने के लिए. वो हम इंडियन सप्लीमेंट ब्रांड सोचते हैं कि क्यों पैसा लगाना है इस पर, जो चल रहा है उसी को घुमा दो, दोबारा कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा उसको. बट अगर इसको इम्प्रूव करना है तो आपको R&D करनी पड़ेगी इसकी. Yes. इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा. तो बाहर के जो ब्रांड्स हैं वो यही करते हैं. समझ. वो इसको प्योरली साइंटिफिक वे में लेके चलते हैं. इवन लैब्स में टेस्ट करते हैं, अगेन एंड अगेन फेल होते हैं, जो भी नई इनोवेशन लेके आनी है. बट यहाँ पे वो चीज़ लैक कर रही है. बट यस, अभी इनिशिएट कर रहा है ब्रांड, तो इन्वेस्ट कर रहा है इस पर. तो वही सबसे मेन एक की प्लेयर है. जब आप R&D नहीं करोगे, उसके अच्छे से रिसर्च नहीं करोगे, फिर उसको हिट एंड ट्रायल नहीं करोगे, तो आपका बेस्ट प्रोडक्ट कैसे आएगा? समझ गया. तो आप रेगुलेशन बोल रहे हो, आप R&D बोल रहे हो. दीक्षांत जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? सेम वही, पहले सेफ्टी कंसर्न. अगर आप जो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आप उसकी लैब रिपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें एक्चुअली जो आप प्रोडक्ट डाल रहे हो, जितना लैब रिपोर्ट हो, एक्चुअल में लोग इंडिया में वो कर नहीं रहे हैं. बहुत से कंपनी है दिखा कुछ और रहे हैं और उसमें होता कुछ और है. तो जैसे हम कंज्यूमर है, हम लोग के लिए सही नहीं ना, हम सोच के चल रहे हैं जो उसमें लेवल है कि इतना दिया, हम उसी हिसाब से ले रहे हैं. बट एक्चुअल में हमें कम मिल रहा है और कुछ अलग चीज़ें मिली जो एक्चुअल में बॉडी को ज़रूरत भी नहीं है. वो रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होने जरूरी है. USA में जैसे आप बोल रहे हो, उधर पे ये चीज़ें पहले लैब एक्चुअल में उनके टेस्ट होता है, रिपोर्ट आती है और सबके साथ जाती है. इंडिया में क्या है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना ली, या अपनी सेटिंग जो बोलो लैब के साथ करके अपनी रिपोर्ट निकाल के दिखा देते हैं. जैसे हम लोग को अभी, मेरे को 10 साल हो गए, भाई को उससे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा साल हो गए, तो हमें पता है कि एक हम टेस्ट करके भी थोड़ी भी चीज़ें हमें समझ में आ जाती है, उसकी मिक्सबिलिटी वो. तो इंडिया में क्या कि लेवल कुछ और है, अंदर कुछ और है. तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए. अगर जैसे वेलकोर दिखा रहा है, जो दिखा रहा है वही है, इसीलिए हम इतने टाइम से उसके साथ जुड़े हैं. और आगे नए जो प्रोडक्ट आ रहे हो और अच्छे रिसर्च के साथ आ रहे हैं, तो और ब्रांड को भी करना चाहिए. अगर, क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं खुद यूज़ कर रहा तो लोग मेरे को देख के यूज़ कर रहे हैं. तो अगर हम ये ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो लोग कैसे खरीदेंगे, ब्रांड कैसे ग्रो करेगा? Awesome. Great. So regulation and trust का भी मामला है. Nidhi, would you like to add something, some practices that should come to India? I think we are so blessed to be Indians, क्योंकि हमारे पास वो rich आयुर्वेदिक कल्चर है. अगर आज हम लोग देखेंगे, there are many compounds which are used from the Ayurveda, the ancient medicine, which are enhancing all of the performances overall, right from immunity, gut health, stability, mood swings, anxiety, depression, and work performance across the capability of a athlete. So I think looking more that we, as sir rightly said, we require more R&D, because I think we are spending less of time in researching what we have. Yes. That's very, very important. And Westerners, they also are advanced with their labs and technical, say, solvents and other biochemical products, which can help them boost their, their production of their supplements. So I think these two things, when the government can support us with enough of funds for even looking into this category, I think maximum population can be benefited. Got it. Regulation, R&D, regulation, और आप बोल लो हमको तो बना के export भी करना चाहिए. Very nice. Okay. Any closing thoughts, Anand, on this India versus abroad? Actually, मेरा point of view बहुत different है. मुझे ये लगता है कि Indians जो हैं वो efficacy से डरते हैं. जब भी हम मुकाबले में वीक पड़ने लगते हैं कि यार हमारे प्रोडक्ट ने ज़्यादा रिज़ल्ट लाया या किसी और के प्रोडक्ट ने ज़्यादा रिज़ल्ट लाया, तो हम अपने कल्चर के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आई. स्वदेश मूवी में मैंने ये देखी थी. ठीक है, जब हम वीक पड़ने लगते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट कमज़ोर पड़ने लगता है, तो हम अपने कल्चर के पीछे छुपते हैं. और वाई वी आर नॉट ग्रेट एट R&D एज अ कल्चर, एज इंडियंस, क्योंकि हम लोग डरते हैं यार.
हम लोग आउटकम कंपैरेटिव आउटकम से डरते हैं, हम नहीं कंपेयर करना चाहते। सबको पता है आज अपने माइंड में, चाहे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट भी आप उठा लो, अगर यूएस का सप्लीमेंट है, इंडियन सप्लीमेंट है, सबको पता है यूएस वाला अच्छा है। क्यों? ये हमारा माइंडसेट है यार। हमने कभी अपने आप को ये बोला ही नहीं कि हम बेस्ट बना सकते हैं। अगर आप अपने आप से ही कन्विंस्ड नहीं हो तो आप बेस्ट बनाओगे कैसे? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। That is so passionate. Amazing. Guys, thank you so much for being part of this panel. Ended on a great note. Round of applause for the panelists. We got to learn so much. Amazing. Thank you so much, guys.